गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज बेटा हम अपना थर्ड चैप्टर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम का, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 8 है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि कब हमारे पास एक्सेस डिमांड होती है और कब हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड होती है। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इनकम is dependent on AD. Now what does this mean? Whenever we talk about AD and AS, it means that we are talking about planned, desired or ex ante variables या measures, right? So what do we say is AD and AS are planned, desired or ex ante. Now suppose if AD is equal to 100 units, accordingly a supplier will try to supply 100 units, but if actual AD means actual demand comes out to be 90, then equilibrium will be struck where actual AD and AS meets, that is 90 is equal to 90, then rest of this 100 minus 90, it means 10 units will go to inventory investment. Where will it go? It will go to inventory investment. It means कि यहां पर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे आया है। अब समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है। इफ आई से दिस इज माय पीपीसी, राइट, एंड माय पोटेंशियल इज 100 units. My potential is 100 units. Now I cannot go beyond this, but I can stay on this PPC or below this. So we say A is our potential output or actual also, B is our actual output, and C is unattainable output. It is unattainable output. Now what does this unattainable output means? It means that we cannot move beyond the full employment. We cannot move beyond the full employment level, right? Let us see it further. You need to pause the videos and note it down, each and everything side by side, right? Now see what does it say. We say equilibrium level according to classical school or classical approach. It says that equilibrium income is determined always at full employment level, but according to Keynesian school or approach or Keynesian theory, it says the equilibrium can be attained at full employment level or less than full employment level, which is called underemployment, which is called underemployment. Or the third situation which can exist is more than full employment level, but in reality more than full employment level will never lead to increase in employment. Why? Because, right, in reality more than full employment level will not lead to increase in employment, because we are already working at full employment level. It means that our resources are already fully employed.
तो हाउ कैन वी इंक्रीज दी एम्प्लॉयमेंट? तो अब हम रिपीट करेंगे अपना पीपीसी वाला पॉइंट कि अगर आपकी ऑलरेडी 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है और आप 100 यूनिट्स ही बना रहे हैं, तो अगर हमें डिमांड 110 यूनिट्स की आती है, देन वी कैनॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन assuming that technology and resources are constant. We have done this in class +1. So to answer this, that how did Keynesian school claim or give us the theory that determination of equilibrium income can be at 3 levels, either of the 3 levels: full employment, less than full employment and more than full employment. तो उसके लिए बेटा हमें समझना जरूरी है कुछ कॉन्सेप्ट्स का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट डू वी से और व्हाट डू वी मीन बाय एन एम्प्लॉयड पर्सन? अब एम्प्लॉयड पर्सन कौन है? लेट अस अंडरस्टैंड. एम्प्लॉयड पर्सन इज अ पर्सन हु इज रेडी टू वर्क at the existing wage rate. He is able and willing to work at the existing wage rate. Let us see. A person who is able and willing to work at the existing wage rate is called employed person. तो इससे हम निकाल सकते हैं अपने इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल. नाउ अनएम्प्लॉयड पर्सन, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज दैट वन हु इज नॉट विलिंग और एबल टू वर्क at the existing wage rate. This is scenario number 1. Second scenario comes when, although the person is willing to work and able to work at the existing wage rate, but he is not getting the work. अब बेटा दोनों में डिफरेंस समझिए कि उसको काम मिल रहा है लेकिन वो एग्जिस्टिंग रेट पे काम नहीं करना चाह रहा. यू आर गेटिंग अ जॉब वर्थ 15,000 रुपीज पर मंथ बट यू आर विलिंग टू वर्क एट 20,000. सेकेंड ऑप्शन इज यू आर रेडी टू वर्क एट 15,000 बट यू आर नॉट गेटिंग द जॉब. तो अब क्या कहेंगे हम? जब आप खुद काम नहीं करना चाह रहे तो इस सिनेरियो को भी से वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और इस सिनेरियो को हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. अब इस इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूसरा नाम जो देते हैं दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. मैं इससे रिलेटेड आपसे 3 एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा. द कंप्लीट डिटेल्स आर इन आवर नेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब वो क्या है देखिए. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जांपल एग्रीकल्चर, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस कि हमारे पास कुछ टाइम काम है और कुछ टाइम काम नहीं है. सो दिस इज इनवॉलंटरी और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सेकंड कम्स फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल क्या है कि जब टाइम लैग आता है किसी भी कारणों से. हम एग्जांपल देख रहे हैं 3. द वेरी फर्स्ट इज चेंज ऑफ जॉब. यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. शिफ्ट इन जॉब लोकेशन. यू आर वर्किंग इन मुंबई, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क इन दिल्ली. इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी. द मशीनरी हैज अ ब्रेकडाउन. तो अब क्या हो रहा है? हम नई मशीनरी लगा रहे हैं. वी आर रिप्लेसिंग इट. तो तब तक के लिए जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट.
The third one comes structural unemployment. It is a mismatch between unemployed persons and the skills required. For example, there is change in technology or new technology has been introduced. तो एग्जाम्पल देख रहे हैं कंप्यूटराइजेशन, तो उस वक्त क्या होगा, जो लोग उससे टेक सेवी नहीं है, जिनको वो चीज नहीं आती, उस टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं आता, दे वुड बी unemployed. So based on this, what we have studied, we get two HOTS questions, two HOTS based questions. Let us see what they are. The very first comes that equilibrium level of income is attained only at full employment level. ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि क्लासिकल थ्योरिस्ट, इकोनॉमिस्ट इसको बोलते थे, लेकिन किनीशियन ने इनको चेंज किया. क्या है जी? Does economy achieves its equilibrium only at full employment level? The answer is no, because there exists some sort of involuntary or natural rate of unemployment. Now the second hot question which arises is full employment means zero unemployment. Full employment means zero unemployment. Again, the answer is no. The answer is no, because full employment में क्या होगा, कहीं ना कहीं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अवेलेबल रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम लेवल अवेलेबल हो सकते हैं, कि जो भी इक्विलिब्रियम है वो किस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ रहा है. तो एम्प्लॉयमेंट लेवल के 3 जगह हमारे पास हो सकती हैं. वो क्या है? द वेरी फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, द सेकेंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये 3 लेवल्स हमारे पास हो सकते हैं. ये है किनीशियन के अकॉर्डिंग. आई होप आपको ये समझ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है. सो नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सप्लेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम इनकम आ रही है या डिटरमिन हो रही है इक्विलिब्रियम इनकम, उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस. यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअल की, फॉर अ लेवल ऑफ आउटपुट which is equal to full employment level of output. इसका मतलब this is my AD, this is my AS. My planned AD is 100 units. My planned AS is 100 units. यानी कि full employment level मेरा 100 units पे अचीव होता है, क्योंकि यहां पर जो मेरा PPC है वो मुझे बोलता है कि I can produce, my economy can produce 100 units. Right? Second thing, अब हम कह रहे हैं ये जो AD-AS है ये किसके इक्वल है? फुल एम्प्लॉयमेंट के. तो इसका मतलब इफ एडी इज 100 यूनिट्स, एएस इज 100 यूनिट्स, ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट द वर्क, एंड माय एक्चुअल एडी कम्स टू बी. देखिए प्लान कितना है? 100. सप्लाई कितना है? प्लान 100. और एक्चुअल कितना है? 100. यानी कि ना तो कम है हमारे पास डिमांड, ना हमारे पास ज्यादा है. इसका मतलब जो हमने प्लान किया था, जब उतना ही एक्चुअल हमारे पास डिमांड आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल. आई होप आपको ये समझ आया.